Hello everyone. So it's my pleasure to be here and share my experience all over the journey. And I want to thank all of them who are interested to call me here and to share my experience. And to make it a little interesting, I just want to combine Hindi and English, because if I share my experience in English, it may sound like documentary. So I just want to share it in Hindi as well, so that it will be a little interesting for you people. So as Sir told that I'm first Indian to get medal in World Cup in gymnastics, artistic gymnastics. So I started my journey at the age of 8. Before that I was into karate, where I started karate when I was 4 years, I think, if I'm not wrong. So I got brown belt at the age of 7. Then my karate master, he was interested into gymnastics, because the gymnastics is a very rare game in India. A lot of people doesn't choose gymnastics because it's completely different, and it doesn't have a lot of recognition. So he has chosen that for me. Then my father showed interest because it's completely out of all sports. So he wanted me to get the recognition for that sport and get into limelight, so that with my journey in gymnastics we'll get into limelight. And because of my father and my karate coach, I've chosen gymnastics. But in the initial stage I was not interested, because gymnastics is a little bit complicated, and the stretches, the fitness, whatever we want is a little harder. When I was too small, जब मेरे कोच मुझे स्ट्रेचिंग वगैरह कराते थे, it was stretching करा रहे हैं, मैं रो रही हूँ, and my father was like, he used to scold me, you're crying, why? And he used to enjoy it. He was like, yeah, good, at least you're getting no pain by this, and you learn out of it and all. And he used to teach me everything since starting. I never faced failures till 10th class, to be frank enough, because tab tak my father was with me and he used to guide me everywhere. He was everything to me. कुछ मतलब मुश्किल वक्त था ही नहीं till 10th class, when I was 15 years till then. Then when I lost my father, that was my first hurdle. I can't say it as failure, but it was my first hurdle, because without my father it was a little difficult for me to continue my sport. And till then I was a national player. I got a lot of medals in national. I was in junior level, and I was a well-known player in the national team. And till then I used to think very small, because पापा जो सोचते थे, I was like, okay, पापा ने ये कहा करने के लिए, so I used to do that. मेरा कुछ सेल्फ ये नहीं था कि नहीं मुझे ये सोचना चाहिए, ये करना चाहिए. तो जिस दिन पापा को मैंने खो दिया, उसके बाद मुझे मतलब I was completely blank कि अब मुझे क्या करना है. फिर मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया कि तुझे ये गिव अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये पापा का ड्रीम है, सो यू हैव टू कोप अप और ये सब कंप्लीट करना है. पापा का जो ड्रीम था कि मुझे इंटरनेशनल मेडल लाना है और जिम्नास्टिक्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जिस तरह अभी बैडमिंटन है, रेसलिंग है हमारे इंडिया में, जितना इम्पोर्टेंस उसको मिलता है, तो मुझे वो प्लेटफॉर्म अभी जिम्नास्टिक्स के लिए देना था. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ओके, अब मुझे इससे हट के मुझे आगे क्या करना है. तब से मैं पहले पापा के लिए करने शुरू किया कि नहीं, अब मुझे पापा का ड्रीम साथ लेके उनका हर सपना पूरा करना है. तो वहाँ से मेरा एक्चुअल जर्नी शुरू हुआ है. फैमिली का सपोर्ट जो मेरे लिए बहुत मेहनत था, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बगैर इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी उसके आगे निकलना. फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया उस वक्त, और मेरे कोच ब्रिज किशोर सर ने जो थे वो मेरे पापा का जगह लिया, एंड ही वॉज माई सेकेंड फादर. उन्होंने वो हर चीज़ जो पापा मतलब जो भी पापा का था कि मैं अभी पापा से ये मिस कर रही हूँ, जो भी चीज़ मुझे मिसिंग थी वो उन्होंने सब कुछ पूरा किया, पापा का जगह कंप्लीट किया. एंड यूज्ड टू गाइड मी कि आगे आगे क्या करना है. वैसे धीरे धीरे मेरा इंटरनेशनल कंपटीशन शुरू हुआ है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन शुरू हुआ है. देन वंस इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन शुरू हुआ था, तब तक मेरी सोच थी कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करना है. लेकिन जैसे जैसे मेरी एक्सपोजर बढ़ने लगी इंटरनेशनल में, देन आई थॉट ऑफ अ मेडल. लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़े.
हर तरह हर चीज़ में पॉलिटिक्स तो होता है, तो द सेम वे हमारे गेम में भी आई वॉज द ओनली साउथ इंडियन प्लेयर जहाँ पे मैं कैंप में ट्रेनिंग करती थी। बाकी सब जो थे वो सब नॉर्थ के थे। तो वहाँ पे मुझे 4-5 साल बहुत सारे मुश्किल फेस करना पड़ा। वहाँ पे ये हुआ कि जो भी प्लेयर्स मेरे साथ थे, जो भी नेशनल टीम के प्लेयर्स थे, उनके अपने अपने कोचेस रहते थे, जहाँ मेरे कोच मेरे साथ वहाँ पे नहीं होते थे। बिकॉज मेरे कोच एक स्टेट के कोच थे और वहाँ पे वो साई की अंडर जो कैंप चलता था, तो साई के कोचेस वर अलाउड है। तो मेरे कोच के बिना मुझे वहाँ ट्रेनिंग करना बस लिटिल पार्शलिटी होती थी कि ये साउथ से आई है, कोच नहीं है। सो आई यूज्ड टू ट्रेन अंडर अदर कोच दूसरे प्लेयर्स के साथ, एंड वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। फर्स्ट मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैं सही हाथ में हूँ कि नहीं हूँ। एवरीवन यूज्ड टू टेल मी कि नहीं अरुणा, यू हैव द कैपेबिलिटी, यू कैन डू समथिंग न्यू जो अभी तक किसी ने नहीं किया, बट यू हैव टू थिंक बियॉन्ड इट। तुम जहाँ पे हो, यू आर नॉट इन द राइट हैंड्स, बिकॉज तुम जो करना चाहते हो वो यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है, उसके आगे तुम सोच नहीं रहे हो ना करना चाहते हो, और लोग तुझे उससे आगे निकलने नहीं देंगे जब तक तू खुद इनिशिएटिव नहीं लेगी। देन आई हैव रियलाइज्ड ओके, मुझे यहाँ पे रह के मुझे इंटरनेशनल मेडल चाहिए, तो यहाँ होते हुए मुझे इंटरनेशनल मेडल तो कभी मिल ही नहीं सकता। बट तब तक मैं थोड़ी इमोशनल बाउंडेड भी थी। मैं ये सोचती थी इतने साल में अगर इन सब के साथ मिलके काम किया है तो इनसे हट के मैं जाऊँगी तो विल इट बी राइट, उनको मैं दुख पहुँचा के आगे जाऊँ वो सही है, या मैं अगर ऐसे करूँगी तो मैं क्या ये सराउंडिंग जो भी लोग हैं इनके साथ मैं आगे काम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बट वो स्टेप डिफ़िकल्ट था, बट आई हैव टू टेक इट टू डू समथिंग मेरे लिए, बिकॉज करियर में आगे बढ़ने के लिए वी शुड बी इंडिविजुअल। हमें एक टीम की ज़रूरत नहीं है, हमारा सोच हमारा काम, दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। देन मैंने वो डिफिकल्ट डिसीजन लिया है कि नो, आई शुड गेट आउट ऑफ इट एंड थिंक मच बिगर। तब से मैं थोड़ा बड़ा सोचने लगी कि ओके, जैसे अभी बचपन में जब कोई प्लेयर हो या बच्चा, जैसे मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो कम्प्लीटली आप लोगों से आउट ऑफ फील्ड हूँ, आई एम कम्प्लीटली टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स। सो आपके लिए हो सकता है थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हो। जब मैं ज्वाइन किया तब मेरी सोच थी कि एक स्टेट में एक मेडल चाहिए, फिर नेशनल में एक मेडल चाहिए, फिर नेशनल के बाद इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करूँ, ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप सोचती थी। लेकिन मुझे एक टाइम पे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोचने से अच्छा पहले हम एक ऐसा अल्टीमेट गोल रखें कि मुझे ओलंपिक मेडल चाहिए, तब हम डाउनवर्ड्स आए तो दैट विल मेक सेंस, वो और इजी होगा। हम नीचे से ऊपर सोचने से अच्छा एक पहला ऐसा गोल हम पहले टारगेट करेंगे एंड विल वर्क डाउनवर्ड्स कि वो अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट। तो मुझे वो डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा कि नो, आई शुड गेट आउट ऑफ दीज ऑल थिंग्स एंड थिंक बाय माई ओन। देन आई स्टार्टेड गोइंग आउट फॉर अब्रॉड ट्रेनिंग, तभी मुझे ये पहला मेडल मिला है। सो दैट वाज माय फर्स्ट सक्सेस। मैंने जो सोचा उसका सक्सेस मुझे मिला है। तो उस दिन से मैं हर चीज़ को उसी तरह सोचने लगी हूँ, थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, और जो भी सोचती हूँ मैं पहले बड़ा सोचने लगी हूँ कि ओके मुझे पहले ये करना है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या प्लान्स बनाने चाहिए। उस तरह मैं प्लान करना शुरू किया, देन इट हेल्प मी आउट। तो मेरे लाइफ में मैं ऐसा फेलियर्स बोलूँ तो वो एक मेरे पापा का जो डेथ था वो एक बड़ा हर्डल था मेरे लाइफ में। एंड उसके बाद ये फर्स्ट मेडल मिलने के बाद मैंने मेरे कोच को भी खो दिया, उनकी भी डेथ हुई। एंड वो मेरे सेकेंड हर्डल है कि उसके बाद कोच के बिना मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। तो इतना कह सकती हूँ कि अगर हमारे पास से कुछ एक चीज़ गया है तो दूसरा चीज़ ज़रूर रहेगा। जैसे एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, तो इन द सेम वे जब मैंने मेरे कोच को भी खो दिया, मुझे अभी ऐसा एक कोच मिला है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता है, हमेशा मुझे एक सही रास्ता दिखाता है और हमेशा मेरा सोच बढ़ा रखे रखता है। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया आगे कि मुझे कैसे करना चाहिए, करियर कैसे बनाना चाहिए, जो मेरी पैशन है जिम्नास्टिक्स के लिए उसको कैसे बना के रखना चाहिए और जिम्नास्टिक्स को किस तरह मैं आगे बढ़ा सकती हूँ। तो मुझे
हर तरफ से हेल्प करने लगा। एंड उसके बाद मेरी नेक्स्ट टारगेट थी, जैसे ये मेडल था 2018 में, तो हमारी हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की अल्टीमेट टारगेट होती है ओलंपिक। तो मेरा तब की टारगेट थी 2020 ओलंपिक। एंड 2019 नवंबर में हमारा उसका लास्ट क्वालिफिकेशन राउंड था। बट अनफॉर्चुनेटली ये मेडल के बाद 2018 अक्टूबर में मुझे ACL इंजरी हुआ एंड आई नीड टू गो फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद एक जिमनास्ट हो या कोई भी एथलेट, it would take 1 year to get back to sport, complete elite performance में. Then that was a major drawback because एक साल एक competition से, एक साल पूरी हमारे फील्ड से बाहर हट के बिना ट्रेनिंग के ओलंपिक अचीव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। उस वक्त मैंने इतने डिटर्मिनेशन के साथ काम किया, मेरे कोच ने भी, क्योंकि हमें वो अचीव करना ही था 2020 ओलंपिक, बिकॉज लाइफ ऑफ अ जिमनास्ट इज वेरी स्मॉल। आफ्टर 25 years it will be little difficult for us to get back and maintain the same performance. तो हमने वो सोच के 2018 नवंबर में जब चोट लगा, दिसंबर में सर्जरी करवा के I was back into sport within 7 months. That was a record. Doctors भी, even doctors were surprised कि अरुणा, how could you do that? Because after ACL, every player needs 1 year of time to get back to sport. But they used to warn me कि अरुणा, you're back, but be safe. कोई risk मत लो. But I need to take that risk. I know उसके consequences बहुत सारे होंगे आगे. Succeed हुए तो अच्छा है, नहीं हुए तो बहुत सारे consequences होंगे. But I have to do that because I want to get qualified for Olympics. Then मैंने 7th month, that was July 19, 2019. Training. I went out for training abroad. पोलैंड में 2 महीने मैंने ट्रेन किया. And September I had competition for Indian team selection. That went really well. मेरी कमबैक इतनी स्ट्रांग थी कि मेरे पिछले परफॉर्मेंस से ये परफॉर्मेंस काफ़ी अलग था. इवन एवरीवन सेड दैट कि अरुणा, योर कमबैक इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर. आई वाज हैप्पी बिकॉज आई वर्कड एंड आई वाज सैटिस्फाइड विद दैट. बट दैट वाज नॉट द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन बिकॉज माय अल्टीमेट गोल वाज टू गेट क्वालिफाइड. देन वी हैड कॉम्पिटिशन इन अक्टूबर इन 2019 एंड you can't believe, just before the day of qualification again I got hurt on the same knee. And I was asked to go for surgery again. So that was the major drawback again. But at that time I didn't give up because it's a God blessing, I should say. I never got that attitude of giving up. So I used to motivate myself. I used to keep my confidence level high and high. Even my family used to support me and my coach as well. They never gave up on me. They never demotivated me, nor they said, no Aruna, you have to come back. You can't do this. मैं जो भी मैं सोचती हूँ, they all have supported me. अगर मुझे रिस्क लेना है, they were back of me. They supported me. And the risk, वो कितना भी high risk होने दो. Because I personally feel without taking risk, you can't succeed in your life. बिना रिस्क का अगर आपको कुछ मिला है, then that satisfaction level is completely different. जब आप कुछ high risk लोगे और आप succeed होगे, and that satisfaction is completely different again. So, but even though if I couldn't qualify for the Olympic, but I am satisfied as I've tried for it. I was satisfied because I have at least tried till the last of the day. अब surgery हुआ, that's the other thing. That is not in my hands. जो होना था वो हो गया. Fine. Surgery फिर जाना है, then I'll come back again. I'll come back more stronger. I'll take enough time. I'll come back. Then even doctors were like, Aruna, this is the last surgery I am going to do. Next, I don't want you to come back to hospital again taking this injury. It's like, no sir, I'll promise you I'll not be back with this again. So I'm completely, I have that confidence. I never lose my confidence even if I fail, because if you're not taking risk and you're अगर आप रिस्क ले नहीं रहे हो लेकिन सब कुछ पा रहे हो, so you're playing very safe. I don't want
play safe. I want to take risk. I want to face the failures, and I want to succeed. And that happiness is completely different. This like what I feel. सक्सेस जैसे अभी किसी को सक्सेस मिला है, कोई कहीं पास हुआ है या उनको बहुत कुछ मिल गया है, तो सब कहते हैं वाह इसका लक कितना अच्छा है. एंड आई पर्सनली फील फेल होना भी एक हमारा लकी पार्ट है, बिकॉज फेलियर से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलते हैं. अभी बिना फेल होके हमें कुछ मिला है, वी डोंट नो द इम्पोर्टेंस, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट सक्सेस. और जब हम फेल होके हम सक्सेस होते हैं, वी नो कि वो सक्सेस के लिए हमने कितना हार्ड स्ट्रगल किया है. बाकी लोगों को अभी फेल हुआ तो वो लोग देखेंगे ही नहीं, बिकॉज वी फेल्ड, बट वी नो वो फेल होने के लिए भी हमने कितना मेहनत किया. एंड वंस अगर हमें अभी उतनी डिटर्मिनेशन है कि हमें ये चीज़ करना है, ये चीज़ हासिल करना है, देन कितने भी बार फेल हो हम कभी गिव अप नहीं करेंगे. बिकॉज आई हैव दैट डिटर्मिनेशन टू गेट इनटू ओलंपिक्स एंड गेट द मेडल. तो मैं अभी 24 तक गिव अप नहीं करूँगी. एंड आई एम डिटरमाइंड टू इट. अभी जब मेरा पहला टारगेट था 20 ओलंपिक खेलने का, देन आई थॉट 22 कॉमनवेल्थ खेल के आई शुड क्विट जिम्नास्टिक्स, आई शुड गेट रिटायर्ड बीइंग अ प्लेयर. लेकिन जब 2020 मेरे हाथ से मिस हो गया, वो फेलियर से मेरी टारगेट और स्ट्रांग हो गई, मेरी टारगेट और बड़ा हो गया. एंड आई एम वर्किंग ऑन इट विद डबल स्पीड. मेरी डिटर्मिनेशन और बढ़ गया. तो फेलियर से बहुत कुछ सीख सकते हैं. मैं तो कहती हूँ कि सक्सेस से फेलियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फेलियर इज एवरीथिंग. सक्सेस एक पल का खुशी है, बट फेलियर सक्सेस मिलने के बाद आप पूरा हर लाइफ याद रखेंगे कि मैं ये क्रॉस करके, ये हर्डल क्रॉस करके मैं ये सक्सेस पाई. और वो खुशी सिर्फ आप जानते हो, सिंगल पर्सन, बाकी कोई नहीं जानते. बिकॉज द ओनली पर्सन हु हैव फेस्ड फेलियर knows the importance of failure and as success as well. तो जब मैं 2020 मिस हो गए, I've thought 2022 में मैं क्विट नहीं करूँगी जिम्नास्टिक्स, बल्कि I'll work harder for 24 Olympics, not only for the participation but to get the Olympic medal. So that is what I think of failure. मेरे लिए failure actually बहुत important है. And कोई लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ये failure कह रही है तो ये excuse भी हो सकता है. But अगर आप वो रास्ते से give up नहीं कर रहे हो और उस पर काम कर ही जा रहे हो failure के बावजूद, you are the great person. आपकी give up की mentality है ही नहीं. You are working on it because you are determined and you are very focused on that certain route. So मेरे लिए फेल होना is very important for us to learn each and everything in the life, and it's a beautiful thing. Thank you.